Can you people hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, there was some disconnection at my end. So let me continue with our discussion about the development of Smith chart. So equation B, we were talking about that. So let me write that equation again. So equation B was like this: real part of reflection coefficient minus 1 whole square plus imaginary part of reflection coefficient minus 1 over reactance, normalized reactance whole square equal to 1 over XL dash whole square. And I was talking about this equation, that this is also equation of circle, and because this equation, the center and the radius of the circle depends on the reactive part, so we will call it as family of reactive circle. So this is representing family of reactive circles. And center of these circles are the along x-axis, it is constant, so it is 1, and along imaginary axis, it will be depending on XL dash. And the center of these circles is simply 1 over XL dash. So now if you consider a gamma plane, so this is the real gamma plane axis, and this is the imaginary gamma axis. Now if I just want to draw 1 or 2 circles to give you an idea. So reactive circles, what is their center? Their center is at 1 comma 1 or XL dash. Okay, so it means along real axis, if this is, let's say, 0, and let's say this is 0.5 and this is 1, so let's assume this is 1. And then if I draw just for representation, one vertical line, so that it is passing through this one line. So all reactive circles, their center must be anywhere on this line, depending upon what is the value of XL dash. If XL dash is positive, so those circles will have their center anywhere on this region. And if XL dash is negative, then the circles will have their center anywhere below this line. But the important point is, because this is 1, so the circles, their center can only be on this line. Okay. And of course, how much is going to be the how much is going, sorry, just me इसको मैं correct कर लेता हूँ. This is not center, this is radius. So how much is going to be the radius of these circles? It is also dependent on XL dash. Okay, and it is obvious because radius is 1 over XL dash. So XL dash value, if it is less, so radius will be large, and XL dash value is more, the radius will be small. Okay, so just for example, हम एक example ले लेते हैं. Let's assume कि XL dash is equal to 1. हम एक simple example ले लेते हैं, so develop our idea. So let's assume that we are given an example जिसमें the load का normalized reactive part है वो 1 के बराबर है. So let's find out कि इससे किस किस्म का सर्कल बनेगा. So पहले तो हम इसका सेंटर देख लेते हैं जी. सेंटर इसका कहाँ पे आ जाएगा XL dash, तो सेंटर इसका 1, 1 पे आएगा. ठीक है, so this is already 1. ठीक है, and then we need to move 1 somewhere here, so let's assume कि यहाँ पे कहीं.
तो ये जो पॉइंट मैंने लिया है ये क्या है 1,1, ठीक हो गया। और इसका रेडियस कितना है, रेडियस भी इसका 1 होगा, सो रेडियस भी इसका 1 होगा। सो अगेन इट मे नॉट लुक गुड, बट इसको मैं इसी के ऊपर ही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि हमारा सेंटर यहाँ पे, और हमने इस तरह का एक सर्कल बनाना है जो कि लेट मी ड्रॉ, इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कितना एग्जैक्ट गुड सर्कल ना बने, लेकिन फिर भी टू गिव यू एन आइडिया मैं इसको अकॉर्डिंगली, ये अगर मैंने लिया हुआ है कि ये 1,1 है तो यहाँ तक होना चाहिए इसका, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये जो सर्कल हमने बनाया है ये हमने अज्यूम किया है कि एक्स एल डैश की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स एल डैश की वैल्यू 0 के बराबर है। या इन 0 से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं कि अगर एक्स एल डैश की वैल्यू अगर हम एक लें जो कि 1 से ज्यादा हो, और एक और एग्जांपल लें जिसमें एक्स एल डैश की वैल्यू 1 से कम हो, तो इस सर्कल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके सेंटर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और इसके रेडियस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। पहले केस कर लेते हैं कि एक्स एल डैश की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो, ये एग्जांपल तो हम देख चुके हैं। अगर 1 से ज्यादा हो, सो इट्स ऑब्वियस कि अब हमारे पास क्या होगा कि एक्सएल की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे तो 1 ही होगा, लेकिन इसका रेडियस जो है क्योंकि एक्सएल डैश 1 से ज़्यादा है, सो यू आर गोइंग टू गेट अ नंबर स्मॉलर देन 1। तो इसका जो क्या कहते हैं सेंटर है वो आपके पास नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पे था, अब क्योंकि एक्सएल डैश की वैल्यू 1 से ज्यादा है, सो 1 डिवाइडेड बाय नंबर ग्रेटर, तो ये नंबर लेस देन 1 आएगा, तो इसका सेंटर जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। एक तो ये इफेक्ट होगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि एज एन एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि एक्सएल डैश की वैल्यू अगर आपके पास लेट्स से 2 हो, विच इज मोर देन 1, तो एक्सएल डैश इक्वल टू 2 से जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर इससे नीचे की तरफ कहीं आ जाएगा, समवेयर और हेयर। और दूसरा रेडियस को अगर हम देखें, क्योंकि एक्सएल डैश डिनोमिनेटर में है एंड 1/2, इट मींस का इसका रेडियस कम हो जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक छोटा एक सर्कल बनेगा। अगेन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं एग्जैक्ट सर्कल बनाऊं, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो हमारे पास इस तरह का एक छोटा सा सर्कल है समवेयर। सो इसका मतलब है कि फिर हम 2 से बढ़ते जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम आपके पास इस तरह के जो सर्कल्स हैं उनका सेंटर जो है नीचे की तरफ आता जाएगा, और ये इनका रेडियस कम होता जाएगा। ये मैंने कौन सा एग्जांपल आपको दे दी है, ये वाली। अब ये एग्जांपल देख लें कि जब ऐसी वैल्यूज हों जिसमें एक्सएल डैश की वैल्यू जो है लेस देन 1, सो 1 और एक्सएल डैश लेस देन 1, तो ये नंबर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका रेडियस यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है। रेडियस यहाँ चला जाएगा, और सॉरी सेंटर जो है ऊपर चला जाएगा एज कंपेयर टू दिस रेफरेंस नंबर। और जो रेडियस है, क्योंकि एक्सएल डैश अगेन डिनोमिनेटर में लेस देन 1 है, तो हमारे पास इसका रेडियस बढ़ जाएगा, इसका रेडियस बढ़ जाएगा। सो यू एंड अप विथ समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ
अब आपके पास इससे भी बड़े सर्कल बनाना शुरू हो जाएंगे इस तरह, समथिंग, ठीक है। अब ये जो मैं जितनी भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्सएल जो है वो पॉजिटिव नंबर है, एक्सएल डैश इक्वल टू 2, एक्सएल डैश इक्वल टू 5, एक्सएल डैश इक्वल टू 0.9, 0.8, तो ये सब मैंने पॉजिटिव लिए हैं। तो ये जितने भी सर्कल्स हैं ये आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बन रहे हैं, ये जो रियल एक्सिस ऊपर बन रहे हैं। नाउ इफ यू कंसिडर, बिकॉज ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये जो एक्सएल डैश है ये रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिएक्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब है कि एक्सएल डैश अगर +1 है तो ये -1 भी हो सकता है। अगर ये -1 होगा तो ऑफकोर्स हमारे पास जो सर्कल बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। इसका सेंटर, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई -1 है तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, ये आपके पास 1 -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास इस तरह का सर्कल आएगा, और इस तरह के फिर और भी बहुत सारे सर्कल्स आएंगे, ठीक हो गया। तो ये अब आप देखें, एक चीज मैं यहाँ पे मैं दूसरे स्लाइड पे चला जाता हूँ ताकि हमारे पास वो रेजिस्टिव सर्कल्स भी हमें नजर आए, और ताकि हम उनका कंपैरिजन कर सकें। सो आई स्टार्टेड विद कि हमारे पास ये गैमा प्लेन है, और इस गैमा प्लेन पे सबसे पहले हमने ये देखा कि इसके ऊपर हमने रेजिस्टिव सर्कल्स बनाए, ठीक है। रेजिस्टिव सर्कल्स, पहले मैं एक बड़ा सा सर्कल बना लेता हूँ जो कि हमने सबसे उसके लिए बनाया था, RL डैश इक्वल टू 0 के लिए बनाया था। और इसके बाद हमने फिर बाकी सर्कल्स बनाए। ये वो सर्कल्स हैं जो कि पिछले सेशन में मैं आपको इक्वेशन ए से डिराइव कर चुके हैं हम लोग, ठीक हो गया। और अभी हमने क्या किया कि हमने जब इक्वेशन बी को देखा, हमने फाइंड किया कि इक्वेशन बी से जो सर्कल जितने भी बन रहे हैं वो सब के सब इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है, इस वन, ठीक। और इससे जो सर्कल बन रहे हैं, मैं अब यहाँ पे इनको दोबारा बनाता हूँ तो गिव यू एन आइडिया कि मैंने जो कहा था कि ब्लू लाइंस को मैं सर्कल कह रहा था, और मैं कह रहा था कि इस वक्त आप कह रहे होंगे कि ये सर्कल, इनको मैं क्यों कह रहा हूँ, बट नाउ विल फाइंड आउट कि वो मैं इस वजह से कह रहा था कि लेट मी ड्रॉ देम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये और इस तरीके से मैं ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी बना रहा हूँ। Because the shape of the circle is not that important, so just forgive me for not drawing exact circle. The point is कि मैं इसका आइडिया आपको देना चाह रहा था, ठीक है। सो ये बात आपको क्लियर हो गया कि जो रेड आपके पास आए हैं, सॉरी, ये जो रेड लाइंस हैं इसमें, ये सारी आपके पास इक्वेशन ए से आए हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइंस आपके पास बनी हैं ये इक्वेशन बी से बनी। इक्वेशन ए को हमने कहा था कि ये रेजिस्टिव सर्कल्स हैं, और इक्वेशन बी को हमने कहा था कि ये रिएक्टिव सर्कल्स हैं। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो हमने जो सबसे बड़ा सर्कल बनाया हुआ है ये ब्लू वाला, ये हमने बनाया था जिसका रेडियस 1 के बराबर था, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये जो सर्कल हमने बनाया था, ये हमने बनाया था कि जब आर एल डैश की वैल्यू 1 हो जाए, तो इसका आपने देखा होगा कि इसका सेंटर यहाँ पे था, 0 0 पे था। और इसका जो हमने रेडियस देखा था तो 1 था। तो इसका ओवरऑल जो आपको नजर आ रहा है ये वाला सर्कल, इसका रेडियस 1 के बराबर है, ठीक है। अब ये जो जिस प्लेन पे हमने ये सर्कल्स बनाए हैं, ये कौन सा प्लेन है? गैमा प्लेन। और गैमा के बारे में ऑलरेडी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि गैमा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं
जितनी भी वैल्यूज हैं गैमा की, वो यूनिट सर्कल के अंदर ही कहीं ना कहीं होगी। इसका मतलब है कि ये जो गैमा प्लेन है, इस गैमा प्लेन में अगर मैं कोई भी गैमा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, वो इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं होगी। इस रीजन के बाहर कोई भी, इस जगह पे कोई भी ऐसी वैल्यू गैमा की हो ही नहीं सकती जो कि इससे बाहर हो। ठीक है। सो व्हाट वी डू इज कि हम इस जो हमने सर्कल्स बनाए हैं रेजिस्टिव और रिएक्टिव सर्कल का जो पोर्शन इस सर्कल से बाहर आ रहा है उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है, अगेन मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम यहाँ से काट देते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कौन सा वाला शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम वो पोर्शन शो करते हैं जो कि इस सर्कल के अंदर लाइक। इस वजह से आपको स्मिथ चार्ट के ऊपर अगर आप देखें, ओरिजिनल जो स्मिथ चार्ट है, जो अभी मैं आपको एग्जैक्ट स्मिथ चार्ट दिखाऊंगा अभी फ्रॉम द बुक, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इन सर्कल्स का ये वाला पोर्शन नजर आ रहा होगा, ये वाला। और इसी तरीके से ये भी। सो द पार्ट ऑफ द रिएक्टिव सर्कल्स विच वर आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल, उसको हमने हटा दिया। ठीक है। ये जो बाहर से इस तरह जा रहा था वो पोर्शन मैंने हटा दिया। सो नाउ यू हैव अ सर्कल, जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास, दिस इज हाउ अ स्मिथ चार्ट लुक लाइक। एंड नाउ यू नो द होल बैकग्राउंड कि ये जो रेड लाइंस हैं ये कहाँ से बनी हैं, और ये जो ब्लू लाइंस हैं ये कहाँ से बनी हैं, इसका सारा आपको क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब ये देखें, अगर हम देखें स्मिथ चार्ट का हमने जो बनाया है ये गैमा प्लेन के ऊपर बनाया है, लेकिन अब जो हम स्मिथ चार्ट यूज करते हैं उसमें आपको कहीं भी ये वाला गैमा आर आई और गैमा आर कहीं नजर ही नहीं आएगा, उसको हम हटा देते हैं। बट वी नो कि एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से इसका बनना चाहिए। मैं इसको ब्लैक लाइन से शो कर लेता हूँ कि एक्चुअली अगर हम इस एक्सिस को देखें, ये आपके पास स्मिथ चार्ट जो है बिल्कुल इस एक्सिस से पास हो रहा है। ये गैमा का रियल पार्ट है, गैमा का। तो आपके पास बिल्कुल इसका स्मिथ चार्ट का जो सेंटर है वो गैमा प्लेन का origin है। ठीक है। बट वी डोंट टॉक अबाउट गैमा प्लेन। ठीक है। व्हाट वी हैव डन इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने जो स्टार्ट किया था कि हमारे पास जेड प्लेन है। ठीक है। जेड प्लेन को अगर आप देखें, पिछले सेशन में मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आर है, ये एक्स। जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास थी, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इम्पिडेंसेस, वो हमने कहा था कि ये इस रीजन में लाइक करते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इम्पिडेंस लाई विद इन दिस रीजन। ठीक। लेकिन जब इसको हमने मैप किया, हमने विद हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट हमने क्या किया, जेड प्लेन से हम किस प्लेन में शिफ्ट हो गए हैं, गैमा प्लेन। और गैमा प्लेन पे ये जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी जेड की, अब वो सब की सब इस रीजन में कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा था कि जेड प्लेन में हमारे पास इनफाइनाइट रीजन था, जब हमने इसको मैपिंग की जेड प्लेन से हम गैमा प्लेन पे आ गए, और हमने ये देखा कि कोई भी जेड की वैल्यू अगर हम उसको गैमा प्लेन में शिफ्ट कर दें तो वो पॉसिबल जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर कहीं ना कहीं। और वो हमें कैसे पता चलेगा क्या होगी, अब हमारे पास रेजिस्टिव सर्कल्स भी हैं, हमारे पास रिएक्टिव सर्कल भी हैं। तो अगर हमें Z की वैल्यू पता होगी तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता होगी, हमें रिएक्टिव सर्कल की भी वैल्यू पता होगी। तो हम ये देखेंगे कि वो कौन सा रेजिस्टिव सर्कल है और वो कौन सा रिएक्टिव सर्कल है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस जगह पे हमारा इम्पिडेंस लाई कर रहा होगा। तो स्मिथ चार्ट, जो हमने एक स्टेटमेंट में मैंने दी थी कि स्मिथ चार्ट हेल्प्स अस टू कन्वर्ट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट टू इम्पिडेंसेस एंड वाइस वर्सा। अब आपको क्लियर हो गया कि ये किस स्पेस पे हम क्या है। ये है तो ये गैमा प्लेन। स्मिथ चार्ट कौन से प्लेन पे बना हुआ है, गैमा प्लेन पे बना हुआ है। लेकिन ये जिस चीज को हमने मैप किया हुआ है, एक्चुअली ये क्या चीज है, ये हमारी इम्पिडेंसेस है, मेरी रेजिस्टिव सर्कल्स हैं और रिएक्टिव सर्कल्स हैं। दैट वाज द होल बैकग्राउंड अबाउट स्मिथ चार्ट। ठीक है। सो ऑल यू नीड टू नाउ नो इज कि ये जो स्मिथ चार्ट है इसको आपने यूज कैसे करना है। इसका कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो गया, अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज इट टू सॉल्व
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके लिए हम इसको मैं इसको एक और क्लियर चार्ट दिखाता हूँ और उसको फिर हम डिस्कस करते हैं। सो लेट मी शेयर दिस विद यू। Can you see this Smith chart? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. नजर आ गया? Yes. Yes, sir. ओके ओके। सो ये वो एक्चुअल स्मिथ चार्ट है जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि ये किस तरह है। अब इसमें लेट मी शो यू उस सर्कल की बात करेंगे जो मैंने जो जिस तरीके से स्मिथ चार्ट मैं ड्रॉ कर रहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अब इसको कुछ चीजें एनोटेट कर लेता हूँ। सो सबसे पहले तो इस चार्ट को अगर आप देखें इसका जो सबसे आउटर मोस्ट सर्कल है वो ये वाला है। जो बाकी आपको स्केल सर्कल नजर आएंगे वो एक्चुअली स्केल के लिए हम यूज करते हैं, जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप वो सर्कल्स मार्क कर लें जो कि एक्चुअली हम इसको जिसको मैं स्मिथ चार्ट कह रहा था। ठीक है, तो ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है दिस वन, जो सबसे आप कह सकते हैं कि स्केल के अंदर जो सबसे आपको सर्कल नजर आ रहा होगा ये एक्चुअली स्मिथ चार्ट की बाउंड्री है। ठीक है, जिसको मैं यूनिट सर्कल कह रहा था। तो इस वक्त जो मैं जिस सर्कल को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये आपका यूनिट सर्कल है। ठीक हो गया। ये आपके पास वो हॉरिजेंटल लाइन है जो कि स्मिथ चार्ट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये वो लाइन है। ठीक है, और आपको ये वाले सर्कल अगेन मैं इसको दोबारा से नहीं बनाना चाहता। ये अगर आप देख रहे हैं ये आपके पास वो रेजिस्टिव सर्कल है जिनको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बनाया था। ठीक हो गया, ये आपको कंप्लीट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, जस्ट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह हमें पता चलेगा कि ये कौन सा सर्कल। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स से इसको देखें, इस सर्कल इस पॉइंट को अगर आप देखें इसके साथ क्या लिखा हुआ है जी? कैन एनीवन रीड दैट? इस पॉइंट के साथ Clear सी दिखाई नहीं दे रहा है सर। कैन एनीवन रीड इट? क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट के साथ? 12 सर। 1.2. 1.2 लिखा हुआ है, यस करेक्ट। यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कल है जिसको अभी मैं लेट मी ड्रॉ डिफरेंट कलर, जिसको मैं अभी ब्लू कलर से बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये जो इस पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा है जो कि ये वाला है, ये सर्कल जब आप इसको रीड करेंगे तो आप कहेंगे कि ये वो सर्कल है जो कि रेजिस्टिव वैल्यू 1.2 के लिए स्मिथ चार्ट में बना हुआ है पहले से। ठीक है, सो ये जो ब्लू लाइन में है ये कौन सी वैल्यू के लिए बना गया है, बनाया हुआ है 1.2 के लिए। इसका मतलब है कि अब क्लियर आपके लिए हो गया है कि अगर आपने एक फाइंड करना हो कि लेट से कि मैं कहूँ कि लेट से ये वाला सर्कल, ये जो सर्कल है ये कौन सी वैल्यू के लिए बना हुआ है, तो अगर आप देखें इस सर्कल को यहाँ पे आके चेक करें कि ये वर्ड हॉरिजॉन्टल स्केल पे ये इसको कहाँ पे कट कर रहा है, तो अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5। इसका मतलब है कि ये वाला सर्कल जो है आर एल डैश इक्वल टू 0.5 के लिए। So this is how you will read the values of the resistive circles जो इस actual Smith chart के ऊपर बने हैं। ठीक है ना? So अगर आपने resistive circles की read करना है कि वो कौन सी value के लिए बना गया है, तो ये आपको let me, ये जो horizontal scale आपको नजर आ रहा है ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको कुछ जो नंबर्स नजर आ रहे हैं नंबर, ये आपके पास ये स्केल आपने यूज करना है टू रीड आउट कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टिव सर्कल कौन सी वैल्यू के लिए बना गया। ठीक हो गया?
इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं जिसको सेंटर कह रहा था, वो अगर आप देखें यहाँ पे, आप देखें जो जहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो इफ यू रिमेम्बर, ये सर्कल मैंने बनाया भी था कि अगर आर एल डैश की वैल्यू 1 हो तो उससे जो रेजिस्टिव सर्कल बनता है वो स्मिथ चार्ट के सेंटर से पास होता है। तो अगर आप चेक कर लें कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाला सर्कल जिसको मैंने बनाया भी था, ये वो सर्कल है। ठीक है, इसको फिर आप इजिली वो कर सकते हैं, डिवाइड फाइंड कर सकते हैं कि ये कहाँ से पास हुआ है। ठीक है, so center of chart जो है, center of Smith chart, that is going to play an important role in impedance matching. जब हम impedance matching के लिए Smith chart को use करेंगे, then you will find out कि ये center of Smith chart क्यों इतना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, right now आपको एक तो क्लियर होना चाहिए कि इस स्मिथ चार्ट के ऊपर रेजिस्टिव सर्कल्स को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो पर्टिकुलर सर्कल है वो कौन सी वैल्यू के लिए बना गया। तो ये तो रेजिस्टिव सर्कल का काम है। अब जो रिएक्टिव सर्कल्स मैंने बनाए थे वो भी आप इजीली यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, मैं सिर्फ इसमें से 1 2 3 बना लेता हूँ। ये आप देखें, ये आपके पास एक मैं बना रहा हूँ, ये रिएक्टिव सर्कल है। ठीक है, इस तरीके से ये एक और रिएक्टिव सर्कल्स हैं, इस तरह बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए कि ये रिएक्टिव सर्कल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बॉटम के ऊपर देखें, बॉटम के ऊपर आपको लेट से मैं एक सर्कल ये आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, ये आपके पास है, एक आपके पास लेट से ये वाला है। So you can easily relate जो डिस्कशन मैंने आपके सामने की थी बेस्ड ऑन रफ स्मिथ चार्ट, जो एक्चुअल स्मिथ चार्ट है उसमें आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके इस स्मिथ चार्ट के ऊपर आपके पास रेजिस्टिव सर्कल्स भी हैं और रिएक्टिव सर्कल भी। अब इनको आपने कैसे रीड करना है? जो रिएक्टिव सर्कल्स हैं उनको रीड करने के लिए अगर आप देखेंगे, जो सबसे जो स्मिथ चार्ट की बाउंड्री है जो कि पहले मैंने मार्क की थी, मैं सिर्फ यहाँ पे जस्ट टू मेक श्योर कि ये बाउंड्री है आपके पास स्मिथ चार्ट की। दिस इज द बाउंड्री ऑफ स्मिथ चार्ट। ठीक है, तो ये कैसे रीड करेंगे? अगर मैं सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन करूं कि ये जो मैंने सर्कल आइडेंटिफाई किया है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी रिएक्टिव वैल्यू के लिए बना गया है? तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यू कैन सी के यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है जो पहले मैंने आइडेंटिफाई किया था, ये कौन से वैल्यू के लिए है? ये एक्सएल डैश इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इस सर्कल को देखें, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये वाला, ये कौन सी वैल्यू का सर्कल है? यहाँ पे आपको दिखा हुआ नजर आ रहा है 5। तो ये एक्स एल डैश इक्वल टू 5 वाला सर्कल। ठीक हो, इस तरीके से ये जो बॉटम हाफ है, ये अगर आप देखें, ये जो मैंने आइडेंटिफाई किया था सर्कल, इसको अगर हम देखें कि ये कौन सी वैल्यू के लिए, अगेन आपको नजर आ रहा है कि 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डू यू नो कि जब आपके पास इस हॉरिजेंटल लाइन के नीचे जितने भी सर्कल हैं ये नेगेटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ 5 है, बट वी विल नो कि ये एक्सएल डैश की क्या वैल्यू है? -5। इसी तरीके से आप डिफरेंट सर्कल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनकी रीडिंग जो है आपके पास किस तरह आपने कर। ठीक है, सो लेट मी सो द पॉइंट इज कि आपने इसको रीड कैसे करना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके पास, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप चेक कर लें कि ये जो वैल्यूज गिवन है ये आपके पास रिएक्टिव सर्कल्स की रीड है। नाउ सम ऑफ द सर्कल्स के साथ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो फिर आपने उसके हिसाब से स्केल को देखते हुए देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से करूंगा कि अगर आप देखें, ये जो सर्कल है इसके साथ लिखा हुआ है कि 1 है, इसका मतलब है कि ये वाला जो रिएक्टिव सर्कल है ये -1 वाला है। इसके साथ लिखा हुआ है 1.2, इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है ये सारा ये -1.2 का है। लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बट वी नो कि ये इनके बिल्कुल मिडल में है। इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है ये -1.1 के लिए होगा। सो मेक श्योर कि अगर आपको, मैं यहाँ पे रेजिस्टिव सर्कल के भी बता देता हूँ, इस रेजिस्टिव सर्कल के साथ लिखा हुआ है 1, इस रेजिस्टिव सर्कल के साथ लिखा हुआ 1.2।
लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये 1.1 का होगा। इस तरीके से ये 1.3 है, 1.4 है। सो मेक श्योर कि स्मिथ चार्ट को जब आप रीड करेंगे तो कुछ रीडिंग्स, बिकॉज इट विल बी वेरी कंजेस्टेड चार्ट बन जाएगा कि हर लाइन के साथ ये स्केल रीडिंग गिवन हो। तो इसको अगर हम यूज करते हैं तो कुछ स्केल रीडिंग आपको गिवन होंगी और कुछ मिसिंग होंगी, जो फिर आप खुद ही जज कर लेंगे कि इसकी क्या वैल्यू। नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट कि ये स्मिथ चार्ट को हमने देख लिया कि इसका बाउंड्री है और इसके रेजिस्टिव सर्कल्स हैं, रिएक्टिव सर्कल्स हैं। द पॉइंट इज कि ये जो बाकी सर्कल्स बने हुए हैं इनका क्या यूज है, इनको हम कैसे यूज करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ स्मिथ चार्ट। नाउ जो हमारे पास स्मिथ चार्ट की हम बात कर रहे थे कि इसको हम यूज करते हैं एज अ ग्राफिकल टूल, उसका मेन यूज किस तरह होगा। तो लेट मी गो बैक टू हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी जिसको हमने नाम दिया था इम्पिडेंस इक्वेशन, ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस इक्वेशन, ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस इक्वेशन बिफोर मिड टर्म। और उसका कंसेप्ट ये था कि अगर हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन हो विद कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 विद फेज कांस्टेंट बीटा, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की हम बात कर रहे हैं, और इसके साथ लोड कनेक्टेड है ZL, और इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है L, और हमने फाइंड करना हो कि इस ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पे कितनी इम्पिडेंस है यहाँ पे। तो जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, हमने दो फॉर्म में इसको डिराइव किया था। एक इक्वेशन ये थी कि हमारे पास Z in will be equal to Z0 1 plus reflection coefficient e power minus j 2 beta L divided by 1 minus gamma e minus j 2 beta L। ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी बिफोर मिड। और इसकी फिर एक और फॉर्म भी थी इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, वो भी आप अगर मैं लिख लेता हूँ, इट वाज समथिंग लाइक दिस Z0 and then ZL plus j Z0 tangent beta L divided by Z0 plus j ZL tangent beta L। तो हमने ये दोनों फॉर्म्स को डिराइव किया था। सो मैथमेटिकली अगर हमने या एनालिटिकली अगर हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन हो कि ZL गिवन हो, L गिवन हो, Z0 गिवन हो, बीटा गिवन हो, और गिवन हो कि लोड का रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कितना है, तो ये सारी वैल्यूज फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसे फाइंड कर सकते हैं। तो आई विल कॉल दिस एज एनालिटिकल टेक्निक और एनालिटिकल मेथड। नाउ अगर मैं एनालिटिकली और इस इक्वेशन को यूज नहीं करना चाहता और मैं एडवांटेज लेना चाहता हूँ स्मिथ चार्ट का, जो कि एक ग्राफिकल टूल है मेरे पास अवेलेबल, सो स्मिथ चार्ट की मदद से मैं जेड इन कैसे फाइंड कर सकता हूँ। जेड इन, मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन वही गिवन है, लेकिन मैं ये इक्वेशन यूज नहीं करना चाहता, मैं एनालिटिकल मेथड यूज नहीं करना चाहता, मैं ग्राफिकल मेथड यूज करना चाहता हूँ स्मिथ चार्ट। तो हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप इंटरप्रेट करें कि हमारे पास जो इक्वेशन हमने लिखी थी, लेट मी गो बैक, जब हम स्मिथ चार्ट ड्राइव कर रहे थे हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जो कि इसके बराबर है ZL माइनस Z0 ZL प्लस Z0। इसको फिर हमने पहले तो इसको नॉर्मलाइज किया था, तो हमारे पास आ गया था कि ZL डैश माइनस 1 ZL डैश प्लस 1 आ गया था। और इसको फिर हमने ZL डैश के लिए रीअरेंज किया था, तो ये आ गया था 1 प्लस गैमा 1 माइनस गैमा। और जो ये गैमा है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। Now I want you to look at
Can you hear me? Yes, sir. Unfortunately, there is continuous disruption of internet at my end. Okay, so what I was showing you कि एक इक्वेशन अगर आप ये देखें कि ZL dash equal to 1 plus reflection coefficient magnitude e to the power j theta 1 minus reflection coefficient e j theta, ये एक इक्वेशन है. और अभी एक इक्वेशन हमारे पास है कि Zn, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ Zn जो है वो इसके बराबर है Z0 1 plus reflection coefficient e power minus j to beta L 1 minus reflection coefficient e power minus j to beta L. Now ये जो ZL के लिए जो हमने लिखा हुआ है ये नॉर्मलाइज्ड, ठीक है. दिस इज यू पीपल नो कि ये हम सिंबल यूज करते हैं किसके लिए कि ये नॉर्मलाइज्ड लोड इम्पिडेंस. ये जो Zn है ये एक्चुअल इनपुट इम्पिडेंस है. तो इसको मैं नॉर्मलाइज कर दूं अगर, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को भी Z0 पे डिवाइड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को भी, तो ये Z0 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये जो इक्वेशन है इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हम अगर लिखें तो क्या होगा. सो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की, इसको मैं लिखूंगा Zn डैश कहूंगा और यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस गैमा e पावर माइनस j टू बीटा L 1 माइनस गैमा e पावर माइनस j टू बीटा L. और ये जो गैमा है वी नो कि इसको हम यहाँ पे मैंने जो लिखा था इसका इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इसको हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे इसका सब मैग्नीट्यूड आ जाएगा और यहाँ पे इसके साथ हम लिख देंगे थीटा माइनस टू बीटा L. और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट e पावर j थीटा माइनस टू बीटा L. नाउ ये इक्वेशन जो कि ZL डैश नॉर्मलाइज लोड इम्पिडेंस के लिए है और ये जो इक्वेशन है जो कि नॉर्मलाइज इनपुट इम्पिडेंस के लिए, इफ यू कंपेयर देम you can see that they are almost similar. यहाँ पे है 1 plus magnitude of reflection coefficient ej theta divided by 1 minus magnitude ej theta. और इसको अगर आप देखें 1 plus magnitude of reflection coefficient, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या लिखा हुआ है, बजाय थीटा लिखने के यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस टू बीटा. द ओनली डिफरेंस इज कि मैं इसको पॉइंट आउट कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे है थीटा माइनस टू बीटा. ठीक है, यहाँ पे है थीटा और यहाँ पे है थीटा माइनस टू बीटा. इट मीन्स कि स्मिथ चार्ट के ऊपर अगर हमारे पास हमें लोड इम्पिडेंस, नॉर्मलाइज लोड इम्पिडेंस की लोकेशन पता हो और हमें Zin डैश फाइंड करना हो तो हमें